You must know one thing that when we are actually telling a story, we need to have a hush in the room. If anybody speaks at any time, so that may not be a very conducive environment. यानी कोई अच्छा माहौल नहीं होगा फिर स्टोरी सुनाने के लिए, right? आगे बढ़े हम. So what do you see on the screen? Shabash. Mohsin Hashmi. He sees Mohsin Hashmi on the screen. We can't see due to the mosquito. Okay, so self-leadership. Becoming, sitting in the driving seat of your own car, right? Yeah. And correcting your own follies, your own self. Instead, somebody else points them out, right? And then maybe giving yourself your own target. Instead, asking somebody to set a target for yourself and then making efforts to achieve it, right? कोई और आपको कोई टारगेट दे कि तुमने ये अचीव करना है, इसकी बजाय आप खुद से अपने लिए एक टारगेट सेट करें और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें. एक सिचुएशन है, मैं आपको अभी दे रहा हूँ. इस सिचुएशन को आपने इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना है, राइट? इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने से मुराद ये है कि आपके पास रिस्पॉन्स टाइम जो है वो सिर्फ 1 सेकंड का है इसमें, और 1 सेकंड आपको पता है कि कितनी जल्दी होता है. अगर कोई भी 1 सेकंड के बाद इसको रिस्पॉन्ड करेगा तो उसके रिस्पॉन्स को सही रिस्पॉन्स नहीं माना जाएगा. What is the word that spells as SHOP? Stop. कुछ लोग बहुत लेट थे, right? So what was that word? Stop. What do you do when the signal turn green? Go. Who said stop? Did anybody else say stop? No. I have tried this thing many a times in many trainings, right? You need to give yourself a big hand of applause. A big hand of बहुत सारे adults जो हैं वो इस गेम के अंदर फंस जाते हैं. And instead go, they say stop. Right? Why? Because I have already framed them in that linguistic trap. Getting my point, right? So now see what is there on the screen. Imagine you are boarding a plane. आप एक जहाज के ऊपर सवार हैं. All is well. You are in the mid flight. अभी आपने let's say इंग्लैंड जाना था, आधी फ्लाइट हुई हुई है. ठीक है. Suddenly the plane jolts and the oxygen masks drop. Situation समझ आ गई? ईमानदाराना जवाब देने हैं उसके बाद. There is an old woman sitting in the next aisle choking as she can't fix her oxygen mask. What should you do first? हर जान कीमती होती है. बाजुकात तो अगले की जान बड़ी कीमती होती है, लेकिन आप खुद सरवाइव करोगे तो फिर ज्यादा दूसरों की मदद कर सकोगे, राइट? तो आपने अपने आप को पहले सस्टेन करना है, और मुमकिन है कि आप उस एक से ज्यादा लोग जो पैसेंजर्स वहां पे मौजूद हैं उनकी जान बचाने की कोशिश और हिम्मत कर सको. बट यू नीड टू हैव द सर्वाइवल फिटनेस फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, राइट? बात हम किस चीज की कर रहे हैं? सेल्फ लीडरशिप की. सो यू कांट हेल्प अदर्स अनलेस यू फर्स्ट हेल्प. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ लीडरशिप थिंग, राइट? इस चीज को आपने जहन में रखना है बेटे. यू नीड साइकोलॉजिकल स्पेस सो दैट यू कैन बी योरसेल्फ. मेनी टाइम्स व्हेन वी आर मूविंग इन द लाइफ, तो बहुत सारा ऐसा कुछ हो रहा होता है कि हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर रहे होते हैं. हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं, हम रिएक्ट कर रहे होते हैं. सो बिफोर यू से एनीथिंग और बिफोर यू डू एनीथिंग, you give yourself the space to analyze what he or she has said or done, and if whatever is there in my mind to act as a reaction, would that bring him or her and me at the same point some positivity or some negativity in return. So as a person who is in control of him or herself, what should you be thinking and aiming at? Trying to create positivity and sustenance to the life around you. Trying to control the possible damages that may come out of as a solution or as a reaction of all your efforts and all your behaviors, right? So controlling yourself, thinking in first, and then instead of a reaction, making it a response. If somebody tries to put a frame on you, you need to say, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपके साथ एक एक्टिविटी की है, मैं आपको फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था उसमें.
मैं उसमें आपको क्या करने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, मैंने पहले SHOP कहकर आपको फ्रेम किया, ठीक है, और वर्ड्स विद द, बिकॉज व्हेन आई से शॉप, द वेरी आई मीन साउंड क्लोज टू दैट इज स्टॉप. सो आई थॉट कि मैं आपका टाइम इतना बीच में से खींच लूं. मैंने वो फ्रेम करने की कोशिश की कि 1 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है, लेकिन उस यू आर सो गुड एट इट कि 1 सेकंड में भी आपने अपना रिएक्शन नहीं दिया बल्कि रिस्पॉन्स देने की कोशिश की. यू आर गुड इनफ टू थिंक अबाउट इट. उस 1 सेकंड के अंदर भी सोचने के आप काबिल थे, राइट? और बहुत सारी जगहों पे लोग काबिल नहीं हो पाते. सो इफ समबडी ट्राइज टू पुट अ फ्रेम, बाजुकात जो है ना वो लोग फॉर नो गुड रीजन, वो सिर्फ आपको जज करने के लिए भी आपके दिल दिमाग के तालाब के अंदर पत्थर फेंक रहे होते हैं कि किस तरह की लहरें उठती हैं यहाँ से. कैरिंग माई पॉइंट? सो आपने खुद चूज करना है कि मैंने किस चीज के ऊपर रिएक्ट या रिस्पॉन्स करना है और किस चीज के ऊपर मैंने नहीं करना. क्योंकि आप बच्चे हैं, मैं आपको बच्चा ही अभी कंसीडर करता हूं, अगरचे आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो माशाल्लाह से एडल्ट्स लोगों की तरह है, उनसे भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज एट मेनी पॉइंट ऑफ टाइम. और द वे यूर पीपल आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग थिंग्स ऑन द स्टेज, तो वो तो बहुत आगे की बातें हैं, राइट? तो मैं ये चाहूँगा कि मैं स्टोरीज के जरिए से आपको बात समझाऊं और आप लोगों ने गैस करना है कि इस स्टोरी से हमने सीखा क्या है, राइट? तो दूर एक जंगल में पहाड़ के फुट ऑफ द माउंटेन जो होता है, फुट ऑफ द माउंटेन समझते हैं? जिस तरह आप समझे कि ये रोस्टम नहीं है, एक पहाड़ है, तो ये नीचे वाली जगह क्या होगी? इसका फुट होगा. सो फुट ऑफ द माउंटेन जो है वहां पे घने दरख्तों का एक जंगल सा होता है. एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक कुआं होता है, ठीक? एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक कुआं भी होता है. अब उस दरख्त के ऊपर ना बंदरों की एक फैमिली आबाद होती है. एक बंदरों की एक फैमिली वहां पर आबाद होती है. तो उनमें एक बुजुर्ग बंदर भी होता है, मे बी द ग्रैंडफादर, और बाकी सारे उनकी सारी उसकी ऑफस्प्रिंग, उसकी औलाद सारी साथ में होती. अब क्या होता है जनाब, एक दिन आधी रात का वक्त है और जो ग्रैंडफादर बंदर है उसकी नज़र जो है वो नीचे दरख्त के नीचे जो कुआं है ना उस कुएं के अंदर पड़ती है. एंड व्हाट डज ही सी इन द, यस, ही सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इन द वेल. कुएं में उसको चांद का अक्स नजर आता है और वो रोला डाल देता है वहां पे, ओए ओए सारे भाग के आओ, ये देखो क्या हुआ, चांद कुएं में गिर गया. चांद कुएं में गिर गया. अब क्या होता है जनाब, चांद कुएं में गिर गया. सारे बंदर जो है ना वो दादाजी की तरफ भागते हुए चले जाते हैं और उनके पास आ जाते हैं. अब दादाजी कहते हैं कि ये हमारा फरीज़ा है, फर्ज ऐन है कि हम चांद को उसकी असल जगह पर पहुंचाएं. अब क्या होता है जनाब, दादाजी जो है वो अपनी दुम जो है वो दरख्त की सबसे मोटी शाख जो होती है उसके साथ लपेट लेते हैं. दे डिवाइज अ प्लान, और अपने हाथों के साथ दादाजी जो है वो अगला बंदर जो है उसकी टांगें पकड़ लेते हैं, राइट? और इसी तरह सारे बंदर जो हैं वो एक चेन सी बना लेते हैं और आखिरी बंदर जो होता है उसके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी होती है ताकि वो स्कूप कर सके पानी के अंदर से जाके चांद. तो एक लंबी सी चेन बन जाती है. करीब होता है कि वो जो बंदर सबसे आगे है जिसके हाथ में बाल्टी है वो पानी के अंदर से स्कूप करके चांद को बाहर निकाले. ऊपर से दादाजी की दुम बुजुर्ग हो चुकी हुई थी, उसकी गिरफ्त जो है वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है और वो जो चेन उन्होंने बनाई होती है उसके अंदर थोड़ा सा लग्जिश आती है थोड़ी सी, और सारे बंदर जो है वो धड़ाम से कुएं के अंदर. दादाजी क्योंकि सबसे ऊपर होते हैं तो उनके पास नीचे आते हुए उनके पास टाइम काफी उन्हें मिल जाता है. इस वजह से वो जो कुएं की साइड पे बनी हुई कोई भी जो चीज होती है, लकड़ी का पेडिस्टल सा बना होता है, वो उसको ही होल्ड्स द ग्रिप देयर. बाकी सारे के सारे बीच में, दादाजी ऊपर. अब जब सारे बंदर जो हैं वो धड़ाम से कुएं के अंदर जाकर गिरते हैं तो पानी का स्प्लैश होता है, छपाका सा एक होता है, और अब वहां पर चांद नजर नहीं आ रहा होता बल्कि बहुत से नन्हे मुन्ने बंदर जो है वहां पे नजर आ रहे होते हैं. ठीक है, इतनी देर में दादाजी भी अपने आप को ऊपर संभाल चुके होते हैं और वो कुएं की तरफ देखते हैं, कुएं में उन्हें चांद नजर, और ये नीचे से सारे ऊपर दादाजी की तरफ देखते हैं तो एक साइड पे उन्हें दादाजी नजर आ रहे होते हैं, दूसरी साइड पे चांद नजर आ रहा होता है. सारे मिलकर चीखते हैं कि हमने, वाह जी वाह, हमने चांद को कुएं से बाहर निकाल दिया.
दादाजी भी कहते हैं कि वाह यार, मुझे मेरी औलाद पर फख्र है कि तुमने चांद को उसकी जगह पर पहुंचा दी है। अब नीचे से सारे के सारे थोड़े से वक्त के बाद, तवक्कुफ के बाद ये चीख रहे होते हैं कि हमें कुएं से बाहर कौन निकालेगा। बेटे बात समझ आ रही है? What do you think? What does this story teach you? And you need to keep in your mind that we are talking about self-leadership. आपके ख्याल में ये कहानी आपको क्या सिखा रही है? Yes? कि दादाजी को आपकी ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत है। वंडरफुल। और जी बेटा। मुझे सब जल्दी बातों में नहीं हाँ? आना, दूसरों की बातों में जल्दी नहीं आना चाहिए। शाबाश। सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत होती, जो भी आपको लाइन ऑफ एक्शन कोई फॉलो करने के लिए दे रहा है, यू डोंट हैव टू बी रिएक्टिव ऑन दैट। आपने अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से उसके बारे में जरूर सोचने की कोशिश करनी है, नहीं तो आप कहां जाएंगे? आपने कुएं का मेंढक तो सुना होगा आज तक, आज से आपको कुएं का बंदर जो है उसकी कहानी का भी पता चल चुका होगा।